So formal good morning. Good morning, ma'am. We are again here with the continuation of this chapter, the age of or the era of industrialization. In your previous class, we had just gone through few of the images, which was actually a comparison of pre-industrialization and post-industrialization era. How at that time in the newspapers or in the paintings or the cover books, how the pictures of such inventions, the technological advancements were appearing. Now, as far as this industrial revolution is concerned, it started in Britain. So in this chapter also, we will be looking at the history by focusing first on Britain, which is the first industrial nation, and then India, where the pattern of industrial change was conditioned by colonial rule. कि पहले ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन जो था, it was the first industrial nation, and it was a master of India at that time. So how they had perceived the modernization or the industrial revolution in India? What had happened or what was the condition before the industrial revolution? All too often we associate industrialization with the growth of factory industry. जब हम industrialization की बात करते हैं, तो we often take it as synonymous to the factory culture. Industrialization means industries, factories, right? When we talk of industrial production, we refer to the factory production, right? Factories में क्या produce हो रहा है? Factories क्या है? Manufacturing units होती है, right? Factories क्या होती हैं? These are the manufacturing units, right? Industries क्या होती हैं? हम एक अगर textile की बात करते हैं, तो textile industry में all the factories that are producing the textiles, that comes under the textile industry. Industry is a vast, right? Industry जो है एक particular production को लेकर है और उसके अंडर factories हैं, right? Factories means जहां पर वो particular चीज जो है वो produce हो रही है. Histories of industrialization very often begin with the setting up of the first factories. ये डाटा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा नया भी नहीं है. आप लोगों को इवन अगर हम इंडिया का भी रेफरेंस लेते हैं, क्लास 8th में you had gone through these terms. First factory set up by Britishers on the banks of river Hooghly. Then the factory set up at Surat. ये सारे आप लोगों ने डाटा ऑलरेडी किए हुए हैं. Anyhow, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिटेन. There is a problem with such ideas. Even before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was large-scale industrial production for an international market. कि जब एक्चुअल में फैक्ट्रीज या फॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट्स एग्जिस्टेंस में आई, उससे काफी पहले से ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था, एंड दैट आल्सो एट अ लार्ज स्केल, वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन. This was not based on factories. Many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. प्रोटो का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज के पहले. प्री भी हम लोग कई बार यूज कर लेते हैं वर्ड. यहाँ पर हिस्टोरियंस ने उस टाइम पीरियड को या इंडस्ट्रियलाइजेशन के उस टाइम पीरियड को, जब फैक्ट्री कल्चर के डेवलप हुए बिना ही industrial production was being carried out,
that period is known as proto-industrialization. Please underline this. In the 17th and 18th centuries, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market. आपको एक याद है, आपने टर्म पढ़ी थी क्लास 7 में, वीवर्स कोऑपरेटिव. वीवर्स कोऑपरेटिव प्लस आपने कुछ पढ़ा हुआ था क्लास 8 में अबाउट द ब्लू रेवेलियन, इंडिगो रेवोल्यूशन से रिलेटेड था. ऐसे कई इवेंट्स आप लोगों ने पढ़े जिसमें क्या होता था कि जो रिच मर्चेंट्स होते थे, they used to provide the raw materials or the loans to the artisans or the weavers or the peasants and ask them to produce, right? Ask these artisans or weavers or the peasants to produce for them so that they could sell those things at the international market and earn more profit. ऐसे बहुत से केसेस जहाँ पर ये जो मर्चेंट्स हैं, जो रिच मर्चेंट्स हैं, वो या तो रॉ मटेरियल्स या लोन्स उधार दे देते हैं और इन लोगों को कहा जाता है कि प्रोड्यूस करें ज्यादा, और ये प्रोडक्शन जो होता है ये मर्चेंट्स इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं और उससे वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं. बट इस प्रोसेस में क्या होता है, द लूजर्स आर द peasants or the weavers or the artisans, जिन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता है एंड दैट इज आल्सो वेरी लेस. और इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर ये जो मर्चेंट्स हैं, दे मेक अ ह्यूज प्रॉफिट. ये जो हमारे वर्ल्ड में एक डिफरेंस बिटवीन, और यू कैन से अ वाइड डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर जो है, वो कल्चर हम कह सकते हैं ये आया ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से है, जहां पर जो प्रोड्यूसर्स थे और यू कैन से ट्रेडर्स, दे कुड मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट. सो इससे जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला गया. With the expansion of world trade and the acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing. Again, we will revert back to class 8. वहां पर एक आपका रेफरेंस आया था कि many of the Europeans they came to India for trade, right? Be it British, be it French, be it Dutch, be it Spanish, ये सब इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए, राइट? जब ये ट्रेड करने के लिए आए तो व्हाट दे वांटेड, इनका पर्पस क्या था? टू हैव अ मोनोपोली ओवर अ ट्रेड, to have a monopoly over a trade and to make huge profits. But when that profit was shared by many these colonial powers, that led to fierce battles between them, right? ये colonialism का टाइम था, जो पावर्स थी, बड़ी पावर्स थी, वो कंट्रीज को कैप्चर कर रही थी, राइट? पर्पस उनका ये था कि दे वांटेड टू हैव अ गुड मार्केट, राइट? दे वांटेड टू हैव गुड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम दीज कंट्रीज. और इंडिया में खासकर ऐसा हुआ कि जब इनका प्रॉफिट शेयर होने लगा, क्योंकि ब्रिटिश भी आ गए, डच भी आ गए, पोर्चुगीज भी आ गए, कितने सारे आ गए, तो प्रॉफिट जो था वो शेयर होने लगा. तो दे दैट लेड टू द फियर्स बैटल बिटवीन देम, बिकॉज एवरी पावर wanted that they should gain more and more power, more and more money, more and more profit, right? So इस चक्कर में आपस में लड़ते रहे और इस लड़ाई में अल्टीमेटली क्या हुआ, दैट द ब्रिटिशर्स वर द विक्टोरियस वन, और उन्होंने पूरे ट्रेड के ऊपर एक उनकी मोनोपोली हो गई, राइट? सो एनी हाउ इस एक्सपेंशन से तो वर्ल्ड ट्रेड एक्सपैंड हो रहा था, सेकेंडली जो कॉलोनियल सिस्टम था वो एक्सपैंड हो रहा था. और जब ये कॉलोनियल सिस्टम एक्सपैंड हो रहा था, कॉलोनियल सिस्टम मींस व्हेन द कंट्रीज आर कैप्चरिंग द स्मॉल, नॉट अ स्मॉलर वन बट द वीकर वन, वो टाइम पीरियड एक था जब ग्लोबलाइजेशन भी स्टार्ट होना शुरू हो गया,
राइट. ग्लोबलाइजेशन हम कहते हैं जिसमें हम लाइक होल वर्ल्ड इज अ विलेज और दैट एवरी कंट्री इज अ कनेक्टेड वन. राइट. तो उस समय तक सी रूट्स इतने डेवलप हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे, लैंड रूट्स इतने डिस्कवर्ड थे, तो द गुड्स एंड द आइडियाज could be exchanged. So that was even the era of globalization. इस ग्लोबलाइजेशन से वर्ल्ड ट्रेड जो था दैट वाज आल्सो एक्सपैंडिंग. तो उससे क्या हुआ कि गुड्स की डिमांड जो थी वो बढ़ने लगी. जैसे अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया का जो क्लाइमेट था स्पेशली साउथ का, दैट वाज वेरी गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस. यूरोप का जो क्लाइमेट है दैट देयर द स्पाइसेस कैन नॉट बी ग्रोन. तो व्हेन दे डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, यहाँ पर उन्होंने देखा कि ये जो स्पाइसेस हैं दैट कैन बी ग्रोन, that are grown. So they wanted this as a raw material. They wanted to purchase it from India and they wanted to sell it to the European countries at a higher rates. तो इन चीजों की डिमांड जो थी वो बढ़ने लगी. अगेन क्लास 8 में हमने क्या पढ़ा था? फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन. इंडिया की जो कॉटन थी, इंडिया के जो स्पाइसेस थे, ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में थे. But merchants could not expand production within the towns. छोटे छोटे towns में अब production possible नहीं था. Could be the lack of money, could be the lack of space. So this was because here urban crafts and trade guilds were powerful. These were associations of producers that trained craft people, maintained control over production, regulated competition and price, and restricted the entry of new people into the trade. जो टाउन्स थे वहां पर अब प्रोडक्शन जो था वो इससे ज्यादा नहीं एक्सपैंड हो सकता था. रीजन इज यहाँ पर ट्रेड गिल्ड्स. इट मींस द ट्रेड एसोसिएशंस. राइट. गिल्ड्स क्या होती हैं? दीज आर द एसोसिएशंस ऑफ मर्चेंट्स. राइट. वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थी. उनका एक अपना कंट्रोल था. कंट्रोल ओवर द क्राफ्ट पीपल, ओवर द प्रोडक्शन, ओवर द कंपटीशन एंड इवन कौन सी चीज किस प्राइस पे बेची जाएगी, दैट वाज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द गिल्ड. एंड who will be doing the business, who will be doing the trade, that was also decided by the guilds. कोई नया पर्सन जो है वो एंटर इन ट्रेड में या बिजनेस में नहीं कर सकता था. सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ये जो गिल्ड्स थी, इन गिल्ड्स या एसोसिएशंस की अपनी मोनोपोली थी अपने अपने टाउन्स में. तो जो ट्रेडर्स उन्हें लगा कि हम और प्रोडक्शन से हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, तो दे वांटेड टू गो टू कंट्री साइड. वो सिटीज में जाना चाहते थे सो दैट कि वहां पर ये और ज्यादा प्रॉफिट बना पाते. रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली right to produce and trade in specific products. Means particular associations जो थी मर्चेंट्स की, उन्हें राइट्स दे दिए गए थे कि भाई ये एक एसोसिएशन है, एक पर्टिकुलर ट्रेड में डील करेगी, दूसरा गिल्ड है वो किसी और ट्रेड में करेगा और उनकी मोनोपोली होगी. इट मीन्स कि इफ सपोज समवन इज डीलिंग विद दिस टेक्सटाइल्स, तो उसमें किसी और गिल्ड को राइट नहीं दिया जाएगा. वो एक गिल्ड जो है या वो एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स हैं वो ही इसमें डील करेंगे. They will have the monopoly over the trade of textiles. दूसरा से एग्जांपल दे रही हूँ, अगर स्पाइसेस है तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को स्पाइसेस का ट्रेड दे दिया था कि उनकी मोनोपोली रहेगी, कोई और उसमें एंटर नहीं करेगा. तो इससे क्या हुआ कि जो ट्रेडर्स थे, आई मीन दे वांटेड टू हु वांटेड टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन एंड द ट्रेड, दे फाउंड इट कि बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर, एक्सपेंशन नहीं हो सकता है. सो दे वांटेड टू गो आउट टू द cities. It was therefore difficult for new merchants to set up business in towns. Even जो पुराने हैं उनके लिए भी restrictions थी, नए जो थे वो enter कर नहीं सकते थे. तो अब towns की जगह they had started moving to the countryside. शहरों की तरफ वो निकल गए. And in the countryside,
poor people, peasants and artisans began working for merchants. अब सिटीज में क्या फायदा हुआ इनको कि जो पीजेंट्स थे, आर्टिजन थे, जो पुअर थे, दे वॉलंटियर्ड टू वर्क फॉर दीज मर्चेंट्स. ये जो मर्चेंट्स थे, ये जो न्यू मर्चेंट्स थे, उनके लिए ये पुअर पीजेंट्स जो थे एज अ वर्कर्स के लिए लोग तैयार हो गए थे. दे वॉलंटियर्ड फॉर इट. एंड एज यू हैव सीन इन द टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर, this was the time when open fields were disappearing and commons were being enclosed. Cottagers and poor peasants who had earlier depended on common land for their survival, gathering their firewood, berries, vegetables, hay and straw, had to now look for alternate source of income. अब ये जो बेचारे peasants थे, अब यहाँ पर भी कुछ आप कह सकते हैं कि कल्टीवेशन लॉज वगैरह ऐसे पास होने शुरू हो गए थे. That these people, Manish, you want to say something? Can you please repeat what I'm saying? Yes. Can you please repeat? Fine. So जितने भी पुअर पीजेंट्स थे जो पहले एसच थोड़ी बहुत खेती करके या फायरवुड इकट्ठा कर लिया, वेजिटेबल्स उगा ली, इन सब से अपना काम चलाते थे, अब नाउ दे हैव टू लुक फॉर द अदर ways of income. Many had tiny plots of land which could not provide work for all members of the households. जो रिच पीजेंट्स थे उनको फर्क नहीं था, जो स्मॉल पीजेंट्स थे उनके पास जमीनें कम थी और उन जमीनों पे जितनी भी वो खेती करते उनकी फैमिली को पूरा नहीं पड़ सकता था. So when merchants came around and offered advances to produce goods for them, peasant households eagerly agreed. तो जब मर्चेंट्स से उन्होंने ऑफर किया कि हम तुम्हें एडवांस पैसे देंगे किसी भी पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये जो पीजेंट्स थे, दे वर वेरी हैप्पी फॉर इट एंड दे वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क. यहाँ पे एक आप स्पिनिंग व्हील देख सकते हो, पे फिगर 3 है. और ऐसा जो एक घरों में प्रोडक्शन हो रहा था, इसमें सारी की सारी फैमिलीज जो है, सारी की सारी फैमिली जो है, घर के सारे मेंबर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहते थे. By working for the merchants, they could remain in the countryside and continue to cultivate their small plots. So ने यहाँ पर एक बेनिफिट ये नजर आ रहा था कि हमारी इनकम जो है सप्लीमेंट हो जाएगी, डबल हो जाएगी या बढ़ जाएगी, कि हम अपना छोटे छोटे जो प्लॉट्स हैं वो भी खेती भी कर लेंगे और मर्चेंट्स के लिए प्रोडक्शन भी कर लेंगे. इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन supplemented their shrinking income from cultivation. जो अदरवाइज उनकी इनकम कम होती जा रही थी, जब इन्होंने मर्चेंट्स के लिए काम करना शुरू किया तो इनकी इनकम भी बढ़नी शुरू हो गई. एंड इट आल्सो अलाउड देम अ फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज. फैमिली के सारे बंदे जो थे, सारे मेंबर्स जो थे वो काम पे लगा दिए जाते थे. कुछ खेती कर रहे हैं, कुछ मर्चेंट्स के लिए काम कर रहे हैं. And within this system, a close relationship developed between the town and the countryside. Merchants were based in towns, but the work was done in the countryside. रहते ये लोग शहरों में थे, छोटे शहरों में, बट जो काम होता था कंट्री साइड, आप कह सकते हैं बॉर्डर एरियाज जो होते हैं. A merchant clothier in England purchased wool from a wool stapler and carried it to the spinner. The yarn that was spun was taken in subsequent stages of production to weavers, fullers and then to dyers. So कितने सारे प्रोसेस जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व है कि मर्चेंट्स जो थे वो क्या करते थे, पहले परचेज करते थे वूल फ्रॉम अ वूल स्टेपलर. स्टेपलर, अ पर्सन हु स्टेपल्स और सॉर्ट वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर. मीन्स जहां पर आप कह सकते हैं कि वूल की क्वालिटी के हिसाब से उसको अलग अलग कर दिया जाता है, स्क्रूटनाइज कर दिया जाता है, आप कह सकते हैं.
and carried it to the spinners. वहां से इसको लेके जाया जाता था spinners के पास, जो इसका yarn या thread बनाते थे. And the yarn that was spun was taken in subsequent stages of production to, means कि एक बार धागा बन गया उसके पास बाद ये जाएगा वीवर के पास, राइट? वीवर के पास जाएगा, वीवर उसका कपड़ा बनाएगा. एंड देन द फलर्स, फलर इज अ पर्सन हु फल्स, दैट इज गैदर्स क्लॉथ बाय प्लीटिंग. आई मीन कपड़े को इकट्ठा करना है, उसको एक शेप देनी है. एंड देन टू द डायर्स, उसके बाद डाइंग के लिए उसमें जो डाई करने होते थे कलर्स या प्रिंट्स, उसके लिए ये भेजा जाता था. द फिनिशिंग वाज डन इन लंदन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लॉथ इन द इंटरनेशनल मार्केट. कुछ याद आ रहा है? ऐसा हमने पढ़ा था शर्ट इन द मार्केट में, क्लास 7 चैप्टर था शर्ट इन द मार्केट. जैसे वहां पर भी एक्सपोर्ट होता था और एक्सपोर्ट से पहले उनकी कितनी कंडीशंस होती थी, टाइमली डिलीवरी, क्वालिटी and everything, right? So London in fact came to be known as the finishing center. कि जो फिनिशिंग रह गई है उसमें वो फिनिशिंग हम कहते हैं लास्ट मोमेंट, जो इसमें एक आई मीन रेडी किया जाता है. हाँ जी, टैग्स लगाने हैं उसको, और लास्ट मोमेंट आप कह सकते हैं कि जो उसमें चेंजेस हैं या कुछ मे बी कुछ डिजाइनिंग है या वॉट एवर द फिनिशिंग वॉज टू बी डन, आई मीन सेल के लिए उसको तैयार कर लेना. सो जब एक्सपोर्ट मर्चेंट्स जो थे दे यूज्ड टू सेल इट इन द इंटरनेशनल मार्केट, और लंदन में ये सारे काम होते थे. आई मीन वीविंग, स्पिनिंग, और उससे पहले है प्रोडक्शन ऑफ वूल. ये सारे काम जो है ये कंट्री साइड पे होते थे, और वहां से सामान जो था फिर लेके आया जाता था लंदन में, जहां पर ओनली फिनिशिंग यूज्ड टू बी देयर. This proto-industrial system was the part of a network of commercial exchanges. It was controlled by merchants and the goods were produced by a vast number of producers working within their family farms, not in factories. फाइन. से जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था, प्लीज इसको अंडरलाइन करिए. इट्स अ पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंजेस, जहां पर एक लेवल से दूसरे लेवल पर सेलिंग एंड परचेजिंग होती है. It was controlled by merchants and goods were produced by vast number of producers working within their family farms, not in the factories. घरों में या अपने फैमिली फार्म्स पर वो प्रोडक्शन करते थे. They did not have any factories to produce. At each stage of production, 20 to 25 workers were employed by each merchant. This meant that each clothier was controlling hundreds of workers. Clothier, cloth merchant हम कह सकते हैं. So हर stage of production, every stage of production, कौन-कौन सी stages होती हैं? Production, स्पिनिंग, वीविंग, उसके बाद फिनिशिंग है. क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक रेडीमेड गारमेंट्स की बात तो कर नहीं रहे, जहाँ पर स्टिचिंग वाला भी एक आएगा सिस्टम. यस. उसके बाद है डाइंग, देन फिनिशिंग एंड देन सेलिंग इट टू द एक्सपोर्टर्स. सो हर आप कह सकते हैं स्टेज पर कम से कम 20 से 25 वर्कर्स जो होते थे वो काम करते थे. सो दिस वाज अ प्रो इंडस्ट्रियल एरा. What has happened after the coming up of the factories, that we will be doing in your tomorrow's class, right?